आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप मेमोराइजिंग इंग्लिश वोकैबुलरी लिस्ट। ऑफन टाइम्स व्हाट वी डू इज हम अपना डिक्शनरी उठाते हैं, ए वाला पेज खोलते हैं एंड वी स्टार्ट मेमोराइजिंग इट, जिसे हम कहते हैं रूट लर्निंग. That is not how we are supposed to learn vocabulary. Okay, so in the first part I will be talking about why you should need to stop memorizing English vocabulary lists and what you have to do instead of that. And in the second part of the lecture I will be talking about why when it comes to spoken English, why we are not able to use the words we have learned. Okay, so without much, let us begin our class without wasting much of our time. Give me a second. Seems to be stuck. Yeah, fine. Working. Okay. First, why I'm asking you to stop learning vocabulary list is lack of context. If you have joined my previous class, okay, so those of who you will be watching my class on YouTube, please make sure that you join me every Wednesday 7 p.m. You can download our app and you can also join our Telegram channel. Both of the links are given in the description box. So from the next time onwards I expect you in my classes. Okay, 7 p.m. Wednesday, don't forget to join. Okay, coming back to our class, what I'm saying is why we should not learn vocabulary list is lack of context. Memorizing words without understanding their meaning and usage in context makes it difficult to effectively use them in real life situations. Now, मान लेते हैं आपने कुछ वर्ड्स रैंडमली लर्न कर ली हैं, लेकिन जब हम वर्ड्स को आइसोलेशन में, एलियनेशन में, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसके आसपास अगर कोई वर्ड्स नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि जब आपको टाइम आएगा रियल लाइफ में अप्लाई करने का, आप वो वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे. व्हाई? बिकॉज दे विल नॉट स्ट्राइक योर माइंड. वो आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आएंगे. तो आपको करना क्या है? हाउ यू हैव टू लर्न वोकैबुलरी. लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया मैंने रीजन, तो उसकी जगह फिर क्या करें? यू हैव टू रीड अ पैसेज फ्रॉम अ बुक, आर्टिकल और अ ब्लॉग पोस्ट. ठीक है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज, go back and review the words you did not know. First reading में you have to just read the passage. Okay, you do not have to fret का मतलब क्या होता है? आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको कोई वर्ड्स नहीं आने. यू गो बैक टू द पैसेज, उन वर्ड्स को दोबारा विजिट करो, अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है. नाउ इफ यू हैव अटेंडेड माय लास्ट क्लास, मैंने बताया था कि अगर आप उसके पीछे और उसके आगे के वर्ड्स को एनालाइज कर पाओगे तो चांसेस है दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेयर द वर्ड इज टेकिंग यू टू, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज. Now, this will help you learn the words in context and remember them later. So the point क्या है? Point सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितने words learn करे हैं आज, 5 करें, 2 करें, 10 करें, 3 करें, 2 करें. Point ये है कि उनको contextualize करना है. Point 2, हमें उसको याद भी करना है. Now, I remember one of my students asking me in my last class कि मैम, मान लेते हैं कि this word is new for us and we have checked the meaning and we have made sure that we remember it later by understanding the word in context. Okay, now what about pronunciation? At times we are not sure what the pronunciation is. So I have given a website, a very useful website, that is youglish.com, which is actually youenglish.com, but it is written as youenglish.com. You can go here and check it out, the accent. Like, we usually follow British pronunciation because of course Britishers came and from thereafter we started using their accent, their way of speaking. So please take down of this website youglish.com. You can check the pronunciation of each and every word. Now, the pronunciation is also not in isolation. Most of the times you will see a video from a YouTube clip or from a movie clip or from a Netflix video or from a promotional video. They take the word and they use it in a context, and that's how you'll be able to learn the pronunciation better, right?
Let us move to what is reason 2 why I am asking you not to learn vocabulary list. Limited retention, again a very very important point, and a point that I always focus in my class. Memorized words are often forgotten quickly if not applied and reinforced. Now what do you mean by reinforced is when you learn something you have to practice 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 practice, right? Like we learn driving. Okay, now first day you go for a drive and the driver teaches you how to drive, how to change gears, and how to cross, how to reverse, and and all those aspects of driving. Now if you don't practice for consecutive days, chances are you will forget all the elements of how to drive a car well. So my point is not only to learn the words in context, secondly you have to make sure that you apply those words. Now how you can do that? Learn 2 to 3 related vocabulary words. So if there is a word say happy, my students know that the synonym of it is elated. Now why do they know? Because they attend my classes. Taking this in mind, let me briefly introduce you to what we do in our classes if you join our course. Okay, give me 2 seconds and I'll quickly take you to all our courses. Okay, Civil Hindipedia Action Plan. Let's achieve goals efficiently. UPSC and PSC preparation plan. Now, what subjects do we teach in UPSC? We teach history, we teach art and culture, we teach geography, Indian society, Indian polity, governance, international relations, and economics. Moving further, science and technology, environment, disaster management, social justice, internal security, agriculture, ethics, integrity, and aptitude, and case studies. Comprehension, well, you'll be there in my classes. Interpersonal skills and communication, again, me. Essay paper, again, you'll be seeing me. Logical reasoning and analytical ability, English language, again, you'll be seeing me. And Indian language. Of course, for other courses, we have other teachers. Now, Civil Hindipedia batches, we have kept our courses at a very nominal price so that every student who cannot afford can join our courses and take the best of it. Okay, so these are the courses and these are the prices for it. Now current affairs 360 by Niharika ma'am from May 2025 to December 2025. Live and recorded classes, of course. Next, Ardhvashik as evam CSAT batch June to November 2025. Varshik GS and CSAT batch June 2025 to May 2026. Now, we have something really, really excitement for you younger ones. If you feel that your cousins who are still going to school, but when they see you study, they feel very, very inquisitive. They feel very, very curious as to what UPSC is. And you can see a streak of learning in them and a knack of cracking UPSC, then this batch is for them. UPSC school batch starting from 1st June. Now, quickly get back, let us go back to our class, like what we were actually discussing. Stop memorizing English vocabulary words. Okay. So as I was saying, why do my students know this word that the synonym of happy is elated? Because of my classes, of course, but you can do it at your level too. So if you know one word, say happy, you can find the related words yourself using a dictionary. Then next, what you have to do is you have to try using the words to describe some aspect of your daily life. See, you saw your friend, okay, and suddenly there was a gush of happiness, okay, then you can say I felt really really elated after seeing my friend. So the word you learned in the morning, you applied it in the evening. So that is how you have to do. This will help you remember what you have learned. Okay, so we have learned 2 points. Let us move to reason 3. Why I'm asking you to stop learning vocabulary list is third is inefficient learning method. Now, as I was saying you, this approach focuses on
rote memorization, and I don't want my students to do rutification. I want my learners to be active. So this approach focuses on rote memorization rather than actively engaging with the language, which can hinder overall language acquisition. So, if you remember, my students, those of you who are my students, if you remember, I shared a worksheet 2 to 3 days back, wherein I shared a movie synopsis, and I have put some words over there like vocabulary in context, and then I also gave you a conversation wherein the conversation was actually about asking in and giving directions, right? What is happening in the chat box? Why are you guys so chatting, chit chatting amongst yourself? What is happening? Why are you guys chit chatting? Let me see what's happening. कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि जो भी वर्ड्स हम लर्न करें, पहली बात तो हम कॉन्टेक्स्ट में करें. दूसरी बात मैंने बोला, अगर आपको हैप्पी मान लेते हैं एक वर्ड आता है, आप उसके सिनोनिम्स लिखो और वही सिनोनिम्स को शाम में अप्लाई करो. सिंपल सी बात है. ओके. Now, third point, this approach focuses on rote memorization rather than actively engaging with the language. अब आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लैंग्वेज के साथ प्लेफुली एंगेज करना है. अगर आप लोगों ने मेरी वर्कशीट देखी है तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या चाह रही हूँ कि हम लैंग्वेज के साथ कैसे एंगेज करें अपने आप को. तो अगर मैं कह रही हूँ कि रट्टा नहीं मारना है कि बिकॉज दिस इज एन इनएफिशिएंट लर्निंग मेथड, तो आपको करना क्या है? Now, if you remember my last class, highlighting that same point again, listen to real English conversations. जो भी नेटिव लोग बात कर रहे हैं उनकी कन्वर्सेशंस को आप सुनो, लिखो. कोई भी नए वर्ड्स, कोई भी एक्सप्रेशंस आपको सुनते हुए आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, टेक अ पेपर पेन एंड राइट डाउन. नाउ गो बैक, देन लिसन टू द कॉन्वर्सेशंस अगेन, और देखो कि आपको अब दोबारा कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड समझ में आ रहे हैं या नहीं. इसलिए इस वजह अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश को अपना एक फ्रेंड बना लोगे, राइट? यू गो बैक टू दैट फ्रेंड अगेन, अब उससे पूछोगे यार ये बात मुझे समझ नहीं आई है, राइट? सो दिस इज हाउ यू एक्टिवली एंगेज विद द इंग्लिश लैंग्वेज, और यही आपको करना है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, भाई उस दोस्त के पास दोबारा जाओ, सुनो उसकी बात की वो क्या क्या रहा है, एंड समझो, और फिर किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे आओ कि या नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज दिस. एनी डाउट्स अप अंटिल नाउ? अभी तक हमने 3 रीजन डिस्कस करे हैं. क्विकली. ओके, ऑल क्लियर, ठीक है. नाउ रीजन 4 इज लैक ऑफ एंजॉयमेंट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्या होता है कि हम ना चीज़ों को समझ इंजॉय नहीं कर पाते हैं. वी डू नॉट इंजॉय द प्रोसेस. हमें ना हर चीज़ को कंप्लीट करना होता है. हमें लगता है ये एक रेस है. इंग्लिश एक और इंग्लिश हर चीज़ में हमें ऐसा लगता है यार इंग्लिश 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 नहीं समझ में आ रहा. ये बॉम्बार्ड हो जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को लेके, कंफ्यूज हो जाते हैं, डेलिमा में ले चले जाते हैं कि अब करना क्या है. तो वो जो प्रोसेस है ना इंग्लिश को एंजॉय करने का, इंग्लिश एक बहुत ही क्रिएटिव लैंग्वेज है जो आप अपने तरीके से, इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज बहुत ही क्रिएटिव होती है. जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थॉट्स वेरी ससेंटली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ससेंटली इज वेरी क्लियरली. तो इंग्लिश एक बाकी जैसे हिंदी है जिसमें हम अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमें एक जरिया देती है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को कन्वे करने का. सो टेक इट एज अ लर्निंग प्रोसेस, टेक इट एज अ जर्नी. डू नॉट फील दैट यू हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन. अगर आपको लगेगा ना कि यार हमें यहाँ पहुंचना है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो चांसेस हैं कि वो जो प्रोसेस है ऑफ इंजॉयमेंट का वो आप खो दोगे. So the main motive is that you should enjoy, that you should take language learning as a fun. Now, simply memorizing long list of words is often tedious and not enjoyable. अगर हम सिर्फ वर्ड्स को रट्टा रट्टा मारते हैं ना, तो हम एक टाइम के बाद ना चांसेस हैं या तो हम उस चीज को दोबारा उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे
ट्यून होके आया कि हम अपने दिमाग में सिर्फ वही फिट कर पाते हैं अगर हम अपनी पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा कि अगर आपको एक वर्ड हैप्पी आता है तो आप उससे दो तीन वर्ड्स रिलेटेड ढूंढो और फिर उसको ध्यान में रखने की कोशिश करो। रैंडमली कुछ कुछ वर्ड्स यूज लर्न करोगे, एक तो आप भूल जाओगे, दूसरा आपको बहुत ही कम्बरसम लगेगा, बहुत ही टीडियस लगेगा, मतलब एक टाइम के बाद लगेगा कि यार इसको आई शुड जस्ट थ्रो इट ऑफ, है ना, और वो प्रोसेस इंजॉयबल भी नहीं रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पिक 3 to 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, 3 से 5 कोई नए इंग्लिश वर्ड्स आप पिक करो। आफ्टर लर्निंग द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, try to actively use them throughout the day in various conversations। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आज आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने कुछ डिस्कशन की, आपने आज अपने कुलीग से कोई बात करी, कोई ऑफिस जा रहा है, आज आपने अपने मम्मा पापा से बात करी, ठीक है, तो जो आपने वर्ड्स यूज करे हैं उनके साथ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज करो, शो ऑफ करने के लिए नहीं, बट ये आपको अपने सिस्टम में डेलिबरेटली लाना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर दैट द वर्ड्स fit in your mind, that you are able to draw connections, that you are able to learn vocabulary in real life and in context, and you are able to apply that words in real life as well। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प यू स्टार्ट एक्टिवली यूजिंग इंग्लिश बिकॉज यू विल कॉन्स्टेंटली बी लुकिंग फॉर क्रिएटिव वेज टू यूज वर्ड्स। यही मैंने कहा कि जब आप, अगर आपने कोई वर्ड्स यूज करे और मैंने आपको कहा कि कॉन्वर्सेशन करो, तो आप ना जरूर सोचोगे कि यार इस वर्ड को इस सेंटेंस में मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, मैं कैसे फिट करूं, मैं क्या करूं कि मैं इसको अपने वे में कन्वे कर पाऊं कि सामने वाला मेरी बात भी समझ जाए और जो मैंने लर्न किया वो मेरे दिमाग में फिट हो जाए। तो यही तो लैंग्वेज है, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्रिएटिव वे टू कन्वे योर थॉट्स एफिशिएंटली एंड कन्वीनियंटली, राइट। सो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स लर्न कर लिए। नाउ this is a very important question that my students often ask me, that when it comes to speaking English, when it comes to communicating English, we tend to forget words. A very very serious questions that has been asked by many of my students, right? मुझे बताओ चैट बॉक्स में किस किस को लगता है कि जब बोलने की बारी आती है तो वर्ड्स नहीं निकलते हैं, भाई जो जितने मर्जी वर्ड्स लर्न करो नहीं आते हैं। हैप्पी का इलेटेड बता दिया, एक्सुबरेंट बता दिया, इलेटेड बता दिया, बट जब बोलने की बारी आती है तो खत्म। ओके, राइट, आई हैव बीन ऑल्सो देयर, मैं भी आपकी जगह पे जब थी तो मेरे साथ भी ये सब होता था, देन आई अंडरस्टूड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम सबके साथ एक टाइम पे ऐसा होता है, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो जब हम कोई भी वर्ड्स लर्न करते हैं वो हमारी दो कैटेगरी में चले जाते हैं, या तो वो हमारी एक्टिव वर्ड्स में चले जाते हैं वर्ड्स, ठीक है, या तो फिर वो वर्ड्स हमारे पैसिव वर्ड्स में चले जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय पैसिव वर्ड्स। All the words that you have learned before, and if you read them or hear them, you know what they mean। आपने कुछ भी वर्ड्स जो पहले लर्न करे हैं, कहीं भी पढ़े हैं, कहीं भी सुने हैं, वो आपको लर्न तो हो गए हैं, और जब आपको दोबारा उनको विजिट करते हो, रिविजिट करते हो, पहले विजिट किया, नाउ यू आर रिविजिटिंग देम। कैसे, किसी ने वो वर्ड बोल दिया, कहीं आपने पढ़ लिया, तो यू इमीडिएटली रिकग्नाइज दिया, और ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था, शिट मुझे याद कैसे नहीं आया। However, when you want to communicate or say something or write something, you do not use them। होता है ना ऐसे, अच्छा ये वर्ड शिट यार ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अब वही जब बोलने की बारी आती है तो यू दैट वर्ड वोंट स्ट्राइक योर माइंड, ना तो आप उसको लिखने में यूज कर पाओगे, ना ही ओरल वो फॉर्म में यूज कर पाओगे, और ना ही रिटन फॉर्म में यूज कर पाओगे। उन्हें हम कहते हैं पैसिव वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो आपको आपने सुने हैं, जो आपने देखे हैं, जिनको आप पहचान पाते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, तो आप उनको यूज नहीं करते हो, उनको हम क्या कहते हैं, पैसिव वर्ड्स, राइट। एक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ऑल द वर्ड्स दैट यू नो एंड यू कैन यूज देम व्हाइल कम्युनिकेटिंग। मतलब जितने भी सारे वर्ड्स जो आपने कहीं पढ़े हैं, सुने हैं, लर्न किए हैं,
लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, प्लस 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 क्या है कि यू आर एबल टू यूज देम वाइल कम्युनिकेटिंग। मैंने एक वर्ड लर्न किया इलेटेड, अब जब टाइम आया तो मैं नहीं यूज कर पाई, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ये वर्ड याद भी रह गया और मैंने यूज भी कर लिया, तो वो क्या बन गया, एक्टिव। आई फेल्ट वेरी इलेटेड आफ्टर सीइंग माई फ्रेंड, राइट। तो मैंने उस वर्ड को एक्टिवली यूज किया और जब मेरी कम्युनिकेशन की बारी आई मैंने उसको एक्टिवली यूज भी किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम दिन में 5 6 7 वर्ड्स अपनी अपनी डिक्शनरी में, अपने डेटा, जो हमारा डेटा बेस है दिमाग में, उसमें स्टोर करते हैं, जैसे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ना, वैसे दिमाग में भी बड़े सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जहाँ पे बड़े सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो माई क्वेश्चन टू यू इज, what do you think is more important, learning more and more vocab word, meaning कि हम अपनी पैसिव वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, या फिर जो वर्ड्स हमारे ऑलरेडी पैसिव वोकैबुलरी का पार्ट है हम उसको एक्टिवेट करें। A very poignant question. Now what do I mean by poignant is a very important question that I am asking you guys is कि should we learn new passive vocabulary या we should learn how to activate passive vocabulary, जो हमारी पैसिव है उसी को और बढ़ाते रहें या फिर जो दिमाग में फिट है उसको अपनी कम्युनिकेशन में लाएं। क्या लगता है आपको, क्विकली आंसर मी। एक्टिव टू पैसिव नहीं, एक्टिव टू पैसिव तो स्पीच का पार्ट है ना। क्या करना चाहिए, एक्टिव क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव, मैं पूछ रही हूँ कि क्या हमें अपनी पैसिव वोकैबुलरी को ही इंक्रीज करना चाहिए, या जो पैसिव वोकैबुलरी हमारे दिमाग में पड़ी हुई है डोरमेंट, जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसका बटन ऑन करना चाहिए, उसका स्विच ऑन करना चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों, दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने, मेरी मान लेते हैं आपने 100 वर्ड्स यूज कर रहे, 100 में आपने लर्न कर लिया और 100 में से आप एक भी वर्ड एक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो 100 लर्न किए हैं वो सिर्फ आपके पेपर में हेल्प करेगा, लेकिन जब स्पोकन की बारी आएगी तो आप कुछ भी हेवी वर्ड्स या कुछ भी ऐसे वर्ड्स विच आर डिफरेंट जो नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे। हमारा मेन गोल ये है कि जो हमारी पैसिव वोकैबुलरी है हम उसको एक्टिव करें। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग इज, आई एम नॉट आस्किंग यू 50-50 थिंग, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट इज लर्निंग हाउ टू एक्टिवेट पैसिव vocabulary. Now, how you can actually do that, I have a very simple solution to this. Have your own personal dictionary, अपनी डिक्शनरी खुद बनाओ, ठीक है। इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड्स, ठीक है, आप उन वर्ड्स को लिखो और उसके साइड में राइट 2 or 3 सेंटेंसेस विद द न्यू वर्ड्स। तो इससे क्या होगा, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट 2 or 3 सेंटेंसेस, व्हाट इज द मेन पर्पस, मैं क्यों कह रही हूँ कि आप वर्ड्स के साथ सेंटेंस लिखो, मीनिंग भी लिखो, लेकिन सेंटेंसेस लिखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दैट, लर्न मोर नहीं, यूज हो जाए ताकि करेक्ट बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं हम उसको। ऑफ कोर्स मुझे एक वर्ड चाहिए जो मैंने पूरी क्लास में बहुत बार यूज किया है, आई नीड दैट वन वर्ड, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू राइट 2 or 3 सेंटेंसेस विद दोज न्यू वर्ड्स, so that in comes in use, of course that is पैसिव से एक्टिव हो जाए, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पूरे लेक्चर में बोल रही हूँ ताकि उस वर्ड को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, रिमेंबर व्हाई आई वाज आस्किंग यू टू रिमेंबर दिस वर्ड कॉन्टेक्स्ट, ताकि उन वर्ड को कोई कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। नाउ आई हैव अ वर्ड शिफ्ट, माई स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। डू यू गाइज एग्री और नॉट कि वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
फिर why didn't you tell me कि मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही थी, राइट और 2 और 3 सेंटेंसेस। अब मेरे पास एक वर्ड है शिफ्ट, मैंने उसको 3 डिफरेंट तरीके से यूज किया और हर जगह उसका मीनिंग अलग आ रहा है, राइट। फर्स्ट सेंटेंस, कैन यू शिफ्ट द टेबल टू द अदर साइड। यहाँ पे शिफ्ट का मतलब है एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, टू मूव। सेकेंड सेंटेंस, शी शिफ्टेड टू फोर्थ गियर एंड ड्रोव फास्टर, मतलब उसने अपना गियर चेंज किया एंड शी ड्रोव फास्टर। यहाँ पे शिफ्ट का मतलब क्या आ रहा है, टू चेंज। थर्ड, शी वॉज ऑन द नाइट शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है जब हम डे में काम करते हैं, मतलब इट स्पेसिफाइज अ पीरियड ऑफ वर्क, या तो आप दिन में काम कर रहे हो या फिर आप रात में काम कर रहे हो। तो तभी मैंने कहा कि आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो, कोई भी नया वर्ड यूज कर रहे हो, उससे 3 सेंटेंसेस बनाओ, 2 या 2, 3, 2 से ज्यादा। वाई? क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का मीनिंग अलग निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट का मीनिंग अलग निकल के आया, यहाँ पे अलग निकल के आया, और यहाँ पे अलग निकल के आया। तो आपको अपनी डिक्शनरी खुद बनानी है। ओके, ऑल क्लियर? चलो, कोलोकेशंस विद दैट वर्ड। यस, रिफ्रेश करो, मेरे यहाँ से स्टक नहीं है। कोलोकेशंस क्या करती हैं, आपको क्या करना है, पहले आपको 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर आपको कोलोकेशन बनाना है उस वर्ड से रिलेटेड। नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय कोलोकेशन? Is everybody facing this issue of my slides getting stuck? Because I am able to see on my other laptop as well. Yeah, it is not getting stuck, guys. Please refresh. ओके, कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है। कोलोकेशंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा साथ में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलोकेशंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलोकेशंस। पहले आपने 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं और फिर आपको उस वर्ड से रिलेटेड कोलोकेशंस बनाने हैं। कोलोकेशंस क्या क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमेशा साथ में जैसे हैं। जैसे मैंने बोला शिफ्ट, मैं सेम ही वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। मैंने बोला शी वॉज ऑन द नाइट शिफ्ट, तो यहाँ पे 2 वर्ड साथ में जा रहे हैं। वो कैसे शिफ्ट पे थी, नाइट शिफ्ट, दैट इज अ कोलोकेशन। अब नाइट क्या यहाँ पे शिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, शिफ्ट यहाँ पे नाउन है, नाइट इज एन एडजेक्टिव। सो कोलोकेशंस आप वर्ड को एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हो, आप उस वर्ड को वर्ब के साथ यूज कर सकते हो, या फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो वर्ब्स का और एडजेक्टिव्स का साथ में। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अगर हम कोलोकेशन कर रहे हैं वर्ड की एडजेक्टिव के साथ, जैसे नाइट शिफ्ट, अर्ली शिफ्ट और लेट शिफ्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वर्क्स की बात कर रही हूँ, तो टू वर्क इन अ शिफ्ट, मैं किसी एक शिफ्ट में काम कर रही हूँ। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि हम शिफ्टें लगा रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाते हैं तो दे ऑल, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हम शिफ्टें लगा रहे हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू डू शिफ्ट्स, दैट इज अ वर्ब। टू वर्क एंड टू डू इज अ वर्ब। अब हम पढ़ेंगे बाद में कि इनको हम कौन से तरीके के वर्ब्स कहते हैं। जब आप मेरी मेन क्लासेस ज्वाइन करोगे, दैट इज द टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज दिस। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ब्स और एडजेक्टिव साथ में कैसे चलेंगे। नाउ यहाँ पे वर्ब है, आई एम डूइंग द अर्ली शिफ्ट, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हुआ, अर्ली शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो हो गया ना कोलोकेशन, जब मैं साथ में वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, और ऐसे वर्ड्स जो साथ में जाते हैं, राइट। तो दिस इज कोलोकेशन। तो आपको अपनी डिक्शनरी बनानी है, पहले 2 से 3 सेंटेंसेस लिखनी है और उस वर्ड से रिलेटेड, और हर वर्ड और हर सेंटेंस में उसका एक अलग मीनिंग निकल के आना चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, कोलोकेशंस बनाने चाहिए। और मैंने आपको डिक्शनरी का एक लिंक भी दी है जिसे हम कोलोकेशन डिक्शनरी कहते हैं। आप वहां पे वर्ड्स टाइप करोगे और आप देख सकते हो कि एडजेक्टिव के साथ वो वर्ब कैसे यूज हो रहा है, वर्ड वर्ब के साथ कैसे हो रहा है, या प्रपोजिशन के साथ कैसे हो रहा है, या वर्ब और एडजेक्टिव जब साथ में होते हैं तब वो कैसे जा रहा है। वेबसाइट का नाम है, प्लीज नोट डाउन दिस वेबसाइट, osdic.com, osdic.com. This is a collocation website. As soon as you visit this, you will get a list of collocations related to that word. Okay. Now, last and very important thing,
जो आपने वर्ड लर्न कर लिया है, जो आपने वर्ड का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट लर्न कर लिया है, जो कॉलोकेशंस आपने लर्न कर लिए हैं, आप उसका एक सिंपल सा इजी सा पैराग्राफ बनाओ। 3 स्टेप्स में काम करना है डिक्शनरी के केस में। 3 से 3, 2 या 2 से 3 ज्यादा सेंटेंसेस लिखने हैं, कॉलोकेशंस बनाने हैं, और लास्ट में उसी वर्ड और कॉलोकेशंस को यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, मैंने पैराग्राफ बनाया कि देर इज अ क्लिनिक नियर माई हाउस, इन दिस क्लिनिक डॉक्टर्स वर्क इन शिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, वर्क, डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं। yesterday I wanted to go to the doctor but I could not। क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग द नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब भी आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गया। और आई रियली हेट डूइंग लेट शिफ्ट, तो यहाँ पे मैंने कैसे यूज किया, एज एन एडजेक्टिव। लेट क्या बता रहा है, शिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लेट इज एन एडजेक्टिव। ऑल क्लियर? डू यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन? A very simple process yet a very effective one. Please go through this video again, watch this, take notes and practice this, because learning language requires practice, consistency and perseverance. Okay, now any doubts? All clear or good? Okay, I have some, let me see, I have some pending requests. Okay, संस्कारी लड़का, yeah, I have invited you to the stage. Yes. हेलो मैम। Hello, good evening. गुड इवनिंग मैम। मैम थोड़ा हिंदी भी बोल दिया करो, मेरे को समझ नहीं आ हिंदी में मैं बोलती हूँ, आपने देखा होगा मैंने सब कुछ ट्रांसलेट किया है ताकि आपको समझ में आ पाए, लेकिन हमारा मेन टास्क ये भी है कि अगर हम उसको इंग्लिश में लर्न नहीं करेंगे तो हम हिंदी में ही अटके रहेंगे। तो अगर मैं हिंदी के साथ इंग्लिश बोल रही हूँ सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड। हिंदी तो आप लोगों को आती है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी नहीं तो फिर इंग्लिश की स्पोकन कैसे इम्प्रूव करोगे? अब मैम क्या है ना, प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है तो हम फिर पूरा दिन उसमें चला जाता है, इस मीनिंग का अर्थ क्या है, इसका क्या है, डिक्शनरी देखने में। हाँ, देखो ऐसे नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। मैंने बोला था कि एक टाइम सेट कर लो। अब आपने मेरी कोई पहले क्लास लगाई है, वेयर वी डिस्कस हिंदू एडिटोरियल? मैंने तो सब लिया है क्लास। सब लगाई है ना? तो वहां पे आपने देखा है कि हम वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में जी। करते हैं ना? तो जब आपको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना तो आपके लिए इजी होंगे। अगर बार बार डिक्शनरी देखोगे तो कंबरसम होगा। जैसे आज मैंने बताया कि अगर आपको कोई न्यू वर्ड आता है तो आपको उसको डिक्शनरी मेंटेन करनी है। अभी थोड़ा थोड़ा करो, जब एग्जाम हो जाएगा ना तब इसको ज्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, इतना बर्डन नहीं लेना है दिमाग पे, ऐसे एकदम स्टक नहीं हो जाना है। फिर छोड़ दोगे 2 दिन 3 दिन पढ़ के, परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर लो, 2 3 कर लो, 4 कर लो। ऐसे अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, फ्रेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। टेक स्मॉल स्टेप्स, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू एस इंग्लिश। ठीक है? ठीक है, ठीक थैंक यू। है, थैंक यू। ठीक है फिर, ओके देन। Okay, then thank you so much. Bye bye. Take care. Have a great day. I have a pending request yet again. This, let me see. Sunil. Okay, that's the last. Okay, okay, last person. Okay, he's Sunil. Okay, yeah. I've invited you to the stage, Sunil. Hello, ma'am. Very good evening. Good evening, How are Sunil. I am fine. How are you? you? Ma'am, when I do a study news and somewhat I do not understand there. Uh, Actually, I am right now I am able to speak English, but when I go to read newspaper English, Hmm. then I got a confusion.
आई अंडरस्टैंड। तो सुनील, आपने देखा होगा कि तभी हम हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, है ना? Yeah, क्लास ma'am. में देखा है। तो वो मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी करती हूँ उसको। Yeah, ma'am. तो वो जो प्रोसेस है ना, वो वन डे प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखोगे, आप चीजें समझने लगोगे। अभी तो शायद हमने दो पैराग्राफ ही करे हैं। तो इंग्लिश ना इज नॉट अ वन डे प्रोसेस टू completely acquire English to be an excellent speaker. It requires some persistence, some consistency, आपके लेवल पे भी और मेरे लेवल पे भी। तो जब हम ग्रामर भी करेंगे आगे, बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे, हम सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो आप जब न्यूज़पेपर देखोगे ना, आप समझ पाओगे कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन वो वाला एक्सेल करने के लिए भी ना लोगों को बहुत बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम ही वर्ड जो है वो वर्ब भी हो सकता है और सेम ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा क्लासेस अटेंड करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो इंग्लिश के साथ। धीरे धीरे यू विल बी एबल टू एस इट। और हम क्लास में ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी साथ में, सो दैट आपको समझ में आए कि हिंदी में उसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर इंग्लिश में हमें सेम बात कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे। दूसरी बात ये है, अगर आप मूवीज देख रहे हो तो उसके इंग्लिश में सबटाइटल्स देख लो, समझ रहे हो? Yeah, हिंदी ma'am. मूवीज को इंग्लिश के सबटाइटल्स में देख लो, तो वो आपको एक और ट्रांसलेशन का मेथड मिल गया और आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रही है, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। Yeah, ma'am. ठीक है? Yeah, ma'am. Ma'am, they when I talk, there is a no problem. I understand. I राइट। can talk anyone in English. I'm ओ। comfortable. But हम्म। when I go to it means a new हम्म। reading new uh, means new words, and I got a confusion. करेक्ट। वही मैंने बोला, जो भी हम क्लास में स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं ना, कि कैसे आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, कैसे अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स को। अगर आपने क्लास लगाई, ठीक है, आप भूल गए कि मैम ने क्या कहा है, एक दो बार लेक्चर्स पे दोबारा देखो, थोड़े से नोट्स बनाओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ ऐसा इनकाउंटर करो ना, वो स्ट्रैटेजी को आप वहां पे अप्लाई कर सको। और यही एक तरीका है इंग्लिश को बेटर बनाने का। Yeah, ma'am. ठीक है? And then, ma'am, I do not use passive sentences. I always use active sentences only. करेक्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन। पैसिव जो कब यूज होता है, कब यूज नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ लेते हैं, उनको हम पैसिव कर सकते हैं, किस चीज को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव नहीं कर सकते हैं। तो ये जब आपको पहचान होगी ना, किस 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 केसेस में हम एक्टिव यूज करते हैं, किस मतलब सॉरी किस किस वे में हम पैसिव को यूज कर सकते हैं, तब आप खुद से अपने आप से चीजें करने लगोगे। हमें पता नहीं होता कि हम किस सेंटेंसेस का पैसिव बनाएं और किसका नहीं बनाएं। Yeah, ma'am. ठीक है? Yeah. Okay, ma'am. I will ask. I have another question, but I will ask No, no, next time. ask, ask, ask. Ma'am, I have studied passive words, okay, and I had forget. Okay, you While are asking me about active and passive vocabulary. I went into another zone of active and passive voice. Acha, you were yeah, asking me about active and passive. Okay, okay. Yeah. sir, yeah, Cover. ma'am. Ma'am, here I want to say that you have to clear the basic concept of passive and active and whatever we will do. When I Oh, will go to active, we can do and then I will do passive at the see. same word हाँ, sentences. मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब था। एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लर्न करा हैप्पी, सबको आता है क्लास में हैप्पी, है ना? क्लास में सबको हैप्पी आता है। जब यूज करने की बारी आएगी ना, तो मैं हैप्पी बोलूंगी, आई एम वेरी हैप्पी विद द क्लास। लेकिन जब बारी आई, मैंने एक वर्ड कहीं सुना, कहीं लर्न भी कर लिया, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उस वर्ड को यूज नहीं कर पाई, मैंने बोला आई एम हैप्पी। ठीक है? मतलब जो इलेटेड मैंने आज सुबह पढ़ा था, वो अब मैं आपसे बात करते हुए नहीं यूज कर पा रही हूँ। क्यों? Yeah, क्योंकि वो मेरी एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट नहीं है, वो मेरी एक पैसिव वोकैबुलरी है। जैसे हम लिखते रहते हैं ना, चीजें लिखते रहते लिखते रहते हैं, हमें सारे नोट्स याद हो जाते हैं क्या? लेकिन जब हम दोबारा रिविजिट करते हैं तो हम करते हैं, ओह ये तो मैंने पढ़ा था।
लेकिन वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव का पार्ट नहीं बनते हैं। तो एक्टिव का पार्ट बनाने के लिए आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज करनी है जो आज मैंने क्लास में डिस्कस करी है, दैट इज कीपिंग अ डिक्शनरी विद यू। वो सारा कुछ अप्लाई करो। उस डिक्शनरी को ना चलते फिरते कभी देख लिया, जैसे आज सुबह लंच करने के बाद जैसे थोड़ा फ्री टाइम है तो देख लिया, और वो पैराग्राफ पढ़ना है, सिर्फ पूरा अब सेंटेंसेस नहीं पढ़ना है, Yeah. कॉलोकेशन नहीं पढ़नी है, वो कॉलोकेशंस और वर्ड जो आपने पैराग्राफ में यूज किया है सिर्फ उस पैराग्राफ को पढ़ना है, ताकि कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड आपके दिमाग में फिर से फिट होने का ट्राई कर पाए। Yes, ma'am. ओके, आ गया समझ? Okay, ma'am. I will do that. A new my dictionary. यस, क्रिएट योर ओन डिक्शनरी। Okay. Thank you so much, ma'am. बाय Okay. बाय। ओके Bye. देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।